Ashanaz, and today I will be explaining you a very simple and very interesting algorithm. The name of this algorithm is round robin algorithm. First of all, let me tell you why are we basically studying this algorithm. The reason behind it is that you have seen when we are using our PCs or any device you are using, and there are so many multiple processes running at the same time. Now the question here is this really true that all these processes are running at the same time, at the CPU? क्या CPU actually में इन सब processes को एक साथ execute कर रहा होता है? Or is it just an illusion? Then the answer is yes, it's just an illusion. ऐसा नहीं होता है that all these processes are running at the same time. It feels like it's parallelly executing, but it is not like that actually. Now let's go to the definition. If I tell you about the definition of this round robin algorithm, then this algorithm is basically a CPU scheduling algorithm. Now what is a CPU scheduling algorithm? See, जब हमारे पास CPU के पास different processes होते हैं और उसको different processes को execute करना है. Now CPU scheduling means which processes actually gets the CPU. इतने सारे प्रोसेसेस के अंदर से अब सीपीयू कौन सा प्रोसेस चूज करके उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सीपीयू स्केड्यूलिंग इन अ वेरी सिंपल टर्म्स. अब सीपीयू के पास इतने सारे जब प्रोसेसेस होते हैं एंड सीपीयू हैज टू स्विच बिटवीन वन प्रोसेस टू अदर एंड देन टू अदर, these sort of processes, this sort of algorithm is known as preemptive scheduling algorithm, and round robin algorithm is one of them. The core concept, if we talk about the core concept of this algorithm, then we will come across the word time quantum. इसमें क्या होता है, in this particular algorithm, each process gets a fixed time which we call as time quantum, and हर process उतने time के लिए execute होगा, and then the CPU will switch to another process, and similarly इसी तरीके से it goes on and it continues. Initially, सारे process lined up हैं and they are ready for the execution, so they will come to the ready queue. तो first step हमारा क्या है, all the processes will come to the ready queue. Second step में क्या होगा, see यहाँ पे हमारे पास ready queue यूज़ हो रहा है, तो of course जो queue का basic concept है first come first serve, वो तो utilize होना ही है. So pick the first process. जो भी हमारे पास first process होगा वो आएगा, ठीक है, सीपीयू के पास, और वो एग्जीक्यूट होगा. नाउ दैट प्रोसेस विल रन फॉर द एलोकेटेड टाइम क्वांटम, जो भी उसका एलोकेटेड टाइम क्वांटम होगा, और टिल इट फिनिशेस, जो भी विच एवर कम्स फर्स्ट. ओके, इफ इन दैट टाइम इफ इट इज executed, if it is completed, then the process ends here. And if it is not finished, then हमारे पास the same process will go back to the ready queue, and again फिर उसका जब टाइम आएगा when all the process जो भी बीच में होंगे वो सारे complete हो जाएंगे, and then that process उसका फिर नंबर आएगा, and then the repeat the process. Okay, this is how this algorithm gonna work. Let's talk about the advantages of this algorithm first. अब देखें हमारे पास यहाँ पर जो टाइम क्वांटम है, एक टाइम पर्टिकुलर टाइम क्वांटम के लिए एक प्रोसेस रन हो रहा है, देन हमारे पास दूसरा टाइम क्वांटम के लिए दूसरा प्रोसेस रन हो रहा है, फिर उसके बाद वो स्विच कर जा रहा है, फिर स्विच कर जा रहा है. तो अगर हमारे पास टाइम क्वांटम अच्छा है और इतना है कि एक यूज़र को जो है वो फील नहीं हो रहा, तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज होगा वो होगा इसका रिस्पॉन्सिवनेस, बिकॉज ईच प्रोसेस गेट्स अ चांस वेरी क्विकली. ओके, फर्स्ट डन. सेकेंड, हमारे पास अगर हम एडवांटेज की बात करें तो विल बी फेयर स्केजुलिंग. फेयर स्केजुलिंग इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एल्गोरिदम ना होता और एक प्रोसेस है जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लेना है, तो वो सारा टाइम सीपीयू जो है वो उसमें लगा देता, एंड द अदर प्रोसेस जिसको थोड़ा सा टाइम चाहिए और उसको उसमें ही कंप्लीट हो जाना है, बट दैट प्रोसेस वो वेट ही कर रहा है. तो वो जो दूसरा प्रोसेस है उसके लिए इट इज़ नॉट फेयर. वो starvation, that is called starvation means एक चीज़ ना मिलना ना, so that is वहाँ पर वो हो रहा होगा. so this is not happening here because of round robin, because of this time quantum जो इसका. so second advantage is fair scheduling. Third and most important
इज़ टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। जो भी हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है। दिस एल्गोरिथम इज़ वेरी गुड देयर। देन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मल्टीटास्किंग सिस्टम्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है, नेटवर्क स्केजुलिंग में हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। थर्ड आई कैन टेल यू इज़ जो हमारे पास ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं, तो वहाँ पर यूज़र्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना टाइम किसको देना है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लाइक ऑनलाइन सर्वर्स में भी वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दो ही चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। एक तो हमारे पास कितना नंबर ऑफ़ प्रोसेस हैं, दूसरा वो कितनी बार रन हो रहा है, और कितनी बार उसको रन होना है मतलब कि उसके नंबर ऑफ़ राउंड्स, या उसको हम साइकिल भी बोल सकते हैं, तो वो कितनी बार आ रहे हैं। उसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम क्वांटम। तो वर्स्ट केस में जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वुड बी O ऑफ n स्क्वायर। ओके, ओके, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट, थोड़ा सा अगर हम इसकी डायग्राम्स पे फोकस करें कि किस तरीके से ये बेसिकली वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सी वी हैव 3 प्रोसेसेस और उसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। बर्स्ट टाइम मीन्स द प्रोसेसिंग टाइम, एंड वी आर कंसिडरिंग दैट यहाँ पर जो अराइवल टाइम है, अराइवल टाइम मीन्स कब हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ रहा है, लाइक बीच में तो एंटर नहीं हो रहा है या सारे प्रोसेस एक साथ स्टार्ट में ही आ गए हैं। सो हियर वी आर कंसिडरिंग दैट द बर्स्ट टाइम, द अराइवल टाइम इज 0, मतलब सबका सेम है। ओके, एंड टाइम क्वांटम जो हमने चूज़ किया है वो है 4 सेकेंड्स। नाउ सी, फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम मतलब प्रोसेसिंग टाइम 24 है। तो सबसे पहले हमारा क्यू में यही है, तो हमने सबसे पहले इसको चूज़ किया। ये 4 सेकेंड इसने अपने कंप्लीट किए एंड देन दोबारा से ये क्यू के अंदर लग जाएगा जाके। ठीक है, अब यहाँ पर इसके 24 के बाद 21 रह गया है, सॉरी 24 के बाद इसका 20 अभी सेकेंड रहते हैं। ठीक है, सेकेंड फिर उसके बाद चल जाएगा हमारे पास P2 के ऊपर। P2 जो है वो 3 सेकेंड्स ही ले रहा है, तो वो 3 सेकेंड कंप्लीट करेगा। नो मैटर अगर हमारे पास अराइवल टाइम ज़्यादा, वो जो उसका बर्स्ट टाइम है वो कम है पूरे क्वांटम से, तो वो कंप्लीट अपना उससे पहले ही हो जाएगा, टाइम क्वांटम से कंप्लीट ही हो जाएगा, और बाकी का टाइम हम उसको आगे प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद P2 के बाद ये P3 के पास जाएगा। P3 जो है वो 3 सेकेंड्स ले रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारे पास जाएगा अगेन ये P1 के पास। P1 के पास गया, उसने 4 सेकेंड अपना क्वांटम लिया। नाउ P1 के बाद कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है क्यू के अंदर जो और कोई रहा हुआ हो, अगेन P1 ही है, तो फिर ये सारा P1 को कंप्लीट करेगा एंड देन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इट इज़ अ C++ कोड। यहाँ पे सबसे पहले वी स्टार्टेड बाय गेटिंग ऑल द लाइब्रेरीज एंड सेटिंग अप द एनवायरनमेंट। देन हमने, अब देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। सबसे पहले तो हमें चाहिए नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस। ओके, तो हमने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ़ प्रोसेस लेने हैं, दूसरा TQ विच इज़ फॉर द टाइम क्वांटम। 2 चीज़ें मस्ट हैं, इसलिए हमने इसको इनिशियली इनिशलाइज कर दिया है। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हमने ले लिया। अब नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस के लिए फॉर ईच प्रोसेस वी हैव टू हैव द प्रोसेसिंग टाइम और उसका रिमेनिंग टाइम, क्योंकि जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो जो उसका लाइक प्रोसेस होने के बाद जो बाकी टाइम रह गया है जिसको हमने बाद में प्रोसेस करना है क्यू के अंदर पीछे लगा कर, तो वो उसके लिए हमने 2 एरेज बनाए। फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस वी हैव टू हैव बर्स्ट टाइम एंड रिमेनिंग टाइम। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन दिस पार्ट वी आर एंटरिंग ऑल दी, जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं उनका प्रोसेसिंग टाइम। बर्स्ट टाइम इज इक्वल टू प्रोसेसिंग टाइम, राइट। तो जितने भी प्रोसेस हैं उनका बर्स्ट टाइम हम इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे, सी इनपुट बर्स्ट टाइम I, and here you can notice that the remaining time is equal to burst time। क्योंकि देखें टाइम अभी 0 है हमारे पास और अभी अभी द प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है, इनिशियली कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो जितने भी प्रोसेसेस हैं उनका बर्स्ट टाइम ही उनका रिमेनिंग टाइम होगा। तो इस वजह से हमने इनिशियली इसको अज्यूम किया है कि हमारा रिमेनिंग टाइम बर्स्ट टाइम के इक्वल है इनिशियली, जब कुछ भी अभी तक कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में नहीं आया है। ओके, देन कम्स द टाइम क्वांटम। यहाँ पे हमने टाइम क्वांटम डिसाइड किया, इनपुट लिया।
अब आते हैं, हमने एक क्यू बनाया है, ठीक है, जो कि हमारा रेडी क्यू होने वाला है। उस क्यू के अंदर हेयर वी आर पुशिंग ऑल दी प्रोसेसेस, वन बाय वन हमने सारे प्रोसेस पुश कर दिए, ओके, एंड टाइम हमने इनिशियलाइज किया दिया इक्वल टू 0। नाउ सी फोकस, अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ प्रोसेस लिया, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेस को जितने भी हमने प्रोसेस लेने थे उसका इनपुट ले लिया, ठीक है, फिर उसके बाद हर प्रोसेस का बर्स्ट टाइम हमें चाहिए, बर्स्ट टाइम को और रिमेनिंग टाइम को इनिशियली हमने इक्वल रखा है। सारे प्रोसेस ले लिए हैं, बर्स्ट टाइम को हमने लिया है और रिमेनिंग टाइम को इक्वल रखा है, देन हमने टाइम क्वांटम डिसाइड किया है और एक हमने क्यू भी बना दी है जिसके अंदर हमने सारे प्रोसेसेस पुश कर दिए। यहाँ तक हो गया। अब आता है हमारी एग्जीक्यूशन की बारी। अब अगर हम देखें तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कब होगी, जब हमारे पास क्यू के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं, ऑल द प्रोसेस इन द रेडी क्यू सारे जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, देन वी नो कि हमारा जो जितने भी प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो गए हैं और कंप्लीट हो गया है प्रोसेस। तो हमने यहाँ कंडीशन लगाई वाइल क्यू डॉट एम्प्टी, मतलब जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती है तब तक ये हमारा प्रोसेस रन होता रहेगा। इनिशियलाइज हमने किया है एक वेरिएबल जिसके अंदर हमने क्यू डॉट फ्रंट रखा है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास टॉप के ऊपर एलिमेंट है क्यू के अंदर, उसको उसका कंटेंट दे दो आप, ठीक है, और क्यू डॉट पॉप क्या कर रहा है, वो उसको ही रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट रिमूव इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि हो सकता है कि वो कंप्लीट ना हो एक ही दफ़ा में और उसको हमें दोबारा यूज़ करना हो, क्यू के अंदर जो है वो ऐड करना पड़े बाद में अगर वो कंप्लीट ना हो। तो इस वजह से पहले हम एक वेरिएबल के अंदर उसको सेव कर रहे हैं, फिर हम उसको पॉप कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हियर इज़ द कंडीशन कि जब हमारा रिमेनिंग टाइम, ठीक है, रिमेनिंग टाइम अगर टाइम क्वांटम से ज़्यादा है, मतलब रिमेनिंग टाइम टाइम क्वांटम से ज़्यादा है, लॉजिकली इसका मतलब ये है कि रिमेनिंग टाइम इतना है कि उसको एक टाइम क्वांटम में वो पूरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा, वो बच जाएगा और उसको हमने अगेन क्यू के अंदर पुश करना पड़ेगा, ठीक है। इसका लॉजिकली सेंस ये है। तो रिमेनिंग टाइम हमारा ज़्यादा है टाइम क्वांटम में, मतलब कि ऑफ कोर्स एट द एंड हमें इसको पुश करना ही पड़ेगा। तो टाइम हमारा आगे बढ़ेगा, एक टाइम क्वांटम रन होगा और रिमेनिंग टाइम के अंदर से वो टाइम क्वांटम माइनस हो जाएगा क्योंकि उतना हमने प्रोसेस कर लिया है। फिर हम इसको दोबारा से पुश कर देंगे क्यू के अंदर। अगर तो रिमेनिंग टाइम जो है वो बड़ा था टाइम क्वांटम से, तो ये वाला पार्ट हमारा रन हुआ। लेकिन अगर टाइम क्वांटम से जो है रिमेनिंग टाइम हमारा कम है या उसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा उसी के अंदर उसी पर्टिकुलर टाइम क्वांटम में पूरा फिर मतलब प्रोसेस हो जाना है, कुछ भी नहीं बचेगा, पुश तो हमें नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो हम टाइम प्लस करेंगे रिमेनिंग टाइम और जो उसका रिमेनिंग टाइम होगा वो 0 हो जाएगा। एंड हियर वी आर जस्ट राइटिंग दैट एट दिस टाइम ये प्रोसेस हमारा फिनिश हुआ है एंड रिटर्निंग 0। इट वॉज सो सिंपल एल्गोरिथम। होप यू गेट इट ऑल।